Hello and welcome back students. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Masters in Computer Science, first year, semester 2, Web Technologies. So, in our previous videos, we have discussed different functions for manipulating files. We have seen functions like read file function, fread, fopen and fclose functions. There are some more functionalities that could be done, and for that we do have some more functions, and let's see all of them in detail. So the very first function today we are going to discuss is fgetS function. Now what's the use of this function? As you can see, it's a read single line function. That means, as in case of fread function, you can read the complete file at a time. Here you are going to read one line at a time. Once you are using the fgetS function, it will read the first line of that particular file, and then the pointer will automatically, or you can say it will get moved to the next line. So let's begin with the theory of this function. The fgetS function is used to read a single line from a file, not the complete file. I repeat, it's not going to read the complete file in one go. It's just going to read a single line from the file. So the example below outputs the first line of webdictionary.txt file. We have a file, say webdictionary.txt file. Now see the example. fopen. With the help of this fopen function, you are going to open this webdictionary.txt in which mode? In read only mode. So you are going to open this file in read only mode, and you are going to save this file where? कहाँ सेव होगी ये फाइल? This file is getting saved in this variable my file, and then if it's unable to open this file, you are going to display a die with the help of this die statement, unable to open file. Now echo what? fgetS of my file. What is there in my file? My file is now holding my complete file webdictionary.txt, and what's this fgetS going to do? It's going to read the first line or a single line from your my file, and then immediately after that you have applied this fclose function my file. So after the execution of this complete code, it's just going to read a single line, and the pointer will be to move to the next line, and the file will be closed. So you can note here, after a call to the fgetS function, the file pointer has moved to the next line. Now PHP check end of line function, check end of file function. Next is FEOF. What's this function going to do? Now the name is very clear. It's going to check the end of file, whether you have reached the end of file. Why do I need to check it? Sometimes we don't know the complete length of our file. ठीक है, जैसे हम लूप्स बनाते हैं इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमें एक एंड पॉइंटर देना होता है ना, कि भाई आपको लूप करना है, कब तक करना है? अंटिल यू रीच दिस पॉइंट. बट आप लिखते हो ना i is less than equal to 10, you keep looping. I is equal to 10, you keep looping जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचते. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें भी किया था, फिबोनाची में आपने ये अप्लाई किया था. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको जब तक एंड पॉइंटर ही नहीं पता होगा, आप लूपिंग करोगे कैसे कि कहाँ तक जाना है? तो यहाँ पे इन केस अगर आपको एडवांस में नहीं पता है, यू डोंट नो व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर फाइल, then you have to find out the end of your file, or you can just use EOF function to reach the end of your file. So basically the EOF function checks if the end of file has been reached. The function FEOF is useful for looping through data of unknown length. If you don't know the length of that data, you can use this function. So let's see an example that reads the file webdictionary.txt. This is the same file we have been using all the examples that we have seen earlier in the first example. It's going to read it line by line until the EOF is reached. How do I know EOF? I am going to know this EOF with the help of this function FEOF. The example is PHP. Now again opening your file webdictionary.txt in R mode. What is R mode? Read only mode. Where are you saving that file? In the my file variable you are saving the file. Otherwise you are displaying a statement say unable to open file.
while file end of file of my file. Now pay attention. while loop लगवा रहे हो आप, इन ब्रैकेट आपने लिखा है FEOF ऑफ वॉट माई फाइल, यानी कि ये जो माई फाइल है इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें ऑलरेडी पता है आपकी ये वाली फाइल है webdictionary.txt। जब तक उसका एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क शो करता है, इट इज़ नॉट, ये नॉट के लिए होता है। तो जब तक आप एंड ऑफ फाइल नहीं पहुंचते तब तक आपको fgetS फंक्शन का यूज़ करके उस माई फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है, बिकॉज इट इज़ getS फंक्शन है ना। तो getS के वजह से या getS का यूज़ करके यू हैव टू रीड दिस माई फाइल वन लाइन बाय लाइन एंड देन क्लोज। बट टिल व्हेन यू हैव टू, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन करते करते आप एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाओगे, और तब ये जो स्टेटमेंट है ना कि फाइल एंड ऑफ फाइल ऑफ माई फाइल, ये ट्रू होगा। और जब ये ट्रू होगा तो आप इस लूप से बाहर आके अपनी फाइल को क्लोज करो, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ फाइल फंक्शन। टू चेक द एंड ऑफ फाइल you have used this function, say FEOF. Next in our box is read single character, that is fgetC function. So PHP fgetC function is used to read a single character from a file. Just like unlike your fgetS function where you were reading line by line, it is going to read one character at a time. The example below reads the webdictionary.txt file character by character until end of file is reached. जब तक हम end of file तक नहीं पहुंच जाते हमें वो character by character पढ़ना ही होगा, ठीक है। अब माई फाइल क्या है, f ओपन करो, किसे ओपन करना है भाई, webdictionary.txt को ओपन करना है। किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में ओपन करना है। कहाँ रखना है, ये वेरिएबल में रखना है, ठीक है। अब जब तक आप एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचते, पिछली प्रोग्राम में आपने उसको getS से रीड किया था, इस बार आप getC लगा रहे हो। सो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो आगे बढ़ता जाएगा। जब तक वो एंड ऑफ फाइल नहीं होता तब तक आपको ये करते रहना है। जब वो एंड ऑफ फाइल पे आएगा आप लूप छोड़ोगे, आप बाहर आओगे और fclose फंक्शन का यूज़ करके अपने फाइल को क्लोज कर दोगे। सो आफ्टर जस्ट लाइक इन केस ऑफ getS फंक्शन की, getS फंक्शन के बाद जो फाइल पॉइंटर था वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता था, यहाँ पे getC फंक्शन के बाद जो फाइल पॉइंटर है वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे चला जाएगा। वेरी गुड। सो दिस इज ऑल एंड these are the functions again you are using for manipulating of your files only. Now let's see an example. They have exercise kind of they have given for you people to solve. See, open a file and write the correct syntax to output one character at the time until end of file. जब तक आप एंड ऑफ फाइल नहीं पहुंचते आपको वन कैरेक्टर राइट करना है यहाँ पे। सो अगेन कुछ पार्ट इस कोड का मिसिंग है, वो आपको फिलअप करना है। कैसे करोगे भाई, तो वाइल डैश माई फाइल एको डैश माई फाइल, तो सिंपल है ना। वाइल फाइल एंड ऑफ फाइल ऑफ माई फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करने बोला है तो एको fgetC फंक्शन बोलता, यहाँ पे लाइन लिखा होता वन लाइन एट ए टाइम तो आप getS फंक्शन लगा लेते। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। Okay, not the examples, but we have file, create and write functions. Okay, how to create and write to a file on the server? That is the question now. So for creating a file, what's written? fopen function. Okay, now this could be quite confusing because they have used this fopen function for opening a file, and now they have written the same function name for creating the file. But no, it's not a misprinting, and no, I haven't done any mistake here in this notes. It is fopen function only. Yes, you have to use the same function to create the file which you have used for opening a file. How to, कैसे होता है ये, बहुत सिंपल है। आपने अपने फाइल, अपने जो भी है सिस्टम में बोला fopen, एक फाइल का नाम दिया आपने PHP कोड को, वो फाइल सिस्टम में नहीं है तो वो ओपन कैसे करेगा। बट ये बहुत अच्छा फंक्शन है।
अगर इसको आपने जो फाइल का नाम दिया है वो फाइल आपके सिस्टम में नहीं है, वो उसे ओपन नहीं कर पाया, तो वो उस नाम की एक फाइल ही बना लेगा, वो एक नई फाइल बना देगा आपको उस नाम से, और वो एक न्यू फाइल आपको क्रिएट करके दे देगा विद द सेम नेम. ओके. The fopen function is also used to create a file. May be a little confusing, but in PHP a file is created using the same function used to open file. The same thing which I told is written here कि भाई जो ओपन करने के लिए फंक्शन यूज़ हुआ था fopen, वो सेम फंक्शन से आप फाइल को क्रिएट भी करोगे. अब देखो, अगर आप fopen लगा रहे हो किसी फाइल पे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इफ़ यू यूज़ अ fopen फंक्शन ऑन अ फाइल जो फाइल है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि दिस फाइल डजंट एग्जिस्ट, वो क्या करेगा, उस नाम की न्यू फाइल बनाएगा और आपको ला के दे देगा. सो इट विल क्रिएट इट गिवन दैट द फाइल इज़ ओपन फॉर राइटिंग एंड अपेंडिंग, और प्रोवाइडेड वो आपको एक नई फाइल बना देगा, आप उसमें राइटिंग कर सकते हो. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल दैट क्रिएट्स a new file called testfile.txt. The file will be created in the directory where the PHP code resides. तो अब आपको देखना है कि ये फाइल बनेगी कहाँ रखी होती है, सेम डायरेक्टरी जहाँ आपका PHP का कोड हर बार सेव होता है, उसी डायरेक्टरी में फाइल भी बनी होती है. माई फाइल fopen testfile.txt इन W मोड, राइटिंग मोड में चाहिए आपको. ये W मोड, बी वेरी क्लियर दैट W मोड क्या था. W मोड था कि अगर उस फाइल की जो भी W मोड के साथ आप जो भी फाइल पास कर रहे हो, अगर उस नाम की फाइल नहीं है तो वो उस फाइल को नई बना के दे देगा, एक न्यू फाइल बना देगा उस नाम से. बट अगर उस फाइल से नाम है सिस्टम में और आपने उस पर राइटिंग मोड दिया, यानी W मोड लगाया है, तो वो क्या करता था, जो पहले से आपने लिखा था ना उसको वो इरेज कर देता है, प्रीवियस डेटा को इरेज कर देता है, उसमें पहले से जो कुछ भी होगा उसे इरेज कर देगा, और फिर आपको उसे खाली करके उस पर फाइल पॉइंटर सबसे बिगनिंग में रख के आपको राइटिंग के लिए दे देता है. ये काम है आपके W मोड का. ठीक है. सो एग्जाम्पल से fopen testfile.txt, W. अब होगा क्या, मान लो ये फाइल है कंप्यूटर में, इस नाम की फाइल है कंप्यूटर में, बट क्योंकि आपने यहाँ W मोड लगाया है, वो क्या करेगा, इस फाइल को पूरा खाली करेगा, जो पहले से था उसको सब डिलीट मार देगा और आपको राइटिंग के लिए दे देगा. और मान लो अगर ये फाइल नहीं थी सिस्टम में, तो वो नई फाइल बनाएगा इस नाम से और उसको राइटिंग के लिए आपको दे देगा. सो दिस इज़ द fopen फंक्शन. डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग अ फाइल. अच्छा, what are PHP file permissions? If you are having errors when trying to get this code to run, आपको कभी भी कुछ एरर्स आते हैं जब कोई कोड आप रन करते हो, तो ये चेक कर लेना कि PHP में फाइल एक्सेस की परमिशन, मतलब टू राइट इन्फॉर्मेशन टू योर हार्ड ड्राइव, उसकी परमिशन, उस एक्सेस दी हुई है या नहीं. यू हैव ग्रांटेड योर PHP फाइल एक्सेस टू राइट इन्फॉर्मेशन टू द हार्ड ड्राइव. Okay, then only you can do this operation. Next is PHP writing to the file. Reading तो बहुत बार देख लिए, अब PHP writing to file देखना है कि how to write the code into PHP. The fwrite function is used to write to a file. तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, fwrite फंक्शन को यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग. माई फाइल, let's see the definition first. The fwrite function is used to write to a file. Fread was used to read a file, but fwrite will be used to write to a file. The first parameter, इसमें दो पैरामीटर्स जाते हैं. पहला तो रहेगा obviously the name of the file to write, and the second parameter is the string to be written. तो पहला पैरामीटर आप लिखोगे कि आपको कौन सी फाइल में राइट करना है, उस फाइल का नाम मेंशन करोगे. सेकेंड पैरामीटर जो है उसमें आपको क्या लिखना है उस फाइल में आप वो मेंशन करोगे. ठीक है. तो फर्स्ट पैरामीटर इज द नेम ऑफ द फाइल टू विच यू वांट टू राइट, एंड द सेकेंड पैरामीटर इज व्हाट यू वांट टू राइट. अंडरस्टूड. सो लेट्स बिगिन. अब एक माई फाइल नाम का वेरिएबल है, उसमें आपने fopen का फंक्शन का यूज़ करके एक फ़ाइल ओपन की इन W मोड. ये फाइल है न्यू फाइल .txt, कौन से मोड में है, W मोड में है. इसको ओपन करके आपने माई फाइल में सेव कर दिया.
या फिर आप इसको लिख दो कि अनएबल टू ओपन फाइल। फिर एक वेरिएबल है यहाँ पे txt, उसका नाम है, उस वेरिएबल में txt वेरिएबल में जॉन डो ऐसा लिख के रखा है अपनी ये स्ट्रिंग। अब आप लिख रहे हो एफ राइट माई फाइल कॉमा txt, यानी ये जो फाइल है ना न्यू फाइल डॉट txt, ये ओपन होगी क्या बेटा? नहीं होगी, बिकॉज ये फाइल अगर सिस्टम में नहीं है या है भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइट मोड उसे खाली करके एक फ्रेश न्यू फाइल बना के ही आपको देगा। तो बेसिकली ये एम्प्टी फाइल है जो माई फाइल में रखी हुई है, और ये txt में एक स्ट्रिंग है। अब एफ राइट क्या कर रहा है? एम्प्टी फाइल कॉमा txt, यानी एफ राइट का फर्स्ट पैरामीटर वो फाइल होती है जिसमें आपको कुछ लिखना है, और सेकेंड पैरामीटर होता है वो डेटा जो आपको उस फाइल में लिखना है। तो दोनों आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप इसके बाद क्या होगा, आपके फाइल में जॉन डो लिखकर आ जाएगा विद एंड लाइन, यानी ये लिखने के बाद लाइन न्यू लाइन पे चला जाएगा वो। फिर से आपने नेक्स्ट txt है जेन डो, फिर से एफ राइट लगाया विद दिस txt, और फिर आपने माई फाइल को क्लोज़ किया। तो इस फाइल में ना जो आपकी बनी है न्यू फाइल, इसमें पहले लाइन में लिखा रहेगा जॉन डो और सेकेंड लाइन में लिखा रहेगा जेन डो। दिस इज इट। Now notice that we wrote to the file newfile.txt twice. हमने 2 बार सेम फाइल पे कुछ राइट किया है, और each time we wrote to the file we send the string txt that first contain John Doe and second time उस txt वेरिएबल में Jane Doe लिखा था, not John Doe। तो आफ्टर फिनिश्ड राइटिंग वी क्लोज द फाइल, और उसके बाद दोनों स्ट्रिंग राइट करने के बाद आपने एफ क्लोज फंक्शन लगा दिया था। अब आप एफ ओपन का यूज़ करके अगर कभी भी न्यू फाइल डॉट txt को ओपन करोगे तो इट वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, देयर इज़ नथिंग न्यू टू दिस जॉन डो एंड जेन डो। नाउ व्हाट इज PHP overwriting? Now that new file.txt contains some data, we can show what happens when we open an existing file for writing. All the existing data will be erased and we start with an empty file. How many times I told you throughout this whole video कि अगर आप किसी फाइल को W मोड में ओपन करते हो तो वो फाइल का पुराना डेटा पूरा इरेज हो जाता है अगर वो W मोड है। आप वो डेटा को अगर प्रिजर्व करके रखना चाहते हो तो यू हैव सम अदर मोड फॉर दैट। व्हाट वाज दैट मोड? डेटा को प्रिजर्व करके रखना हो तो द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ फाइल इज प्रिजर्व, फाइल पॉइंटर स्टार्ट्स एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। क्या है वो? अपेंड मोड, ए मोड। आई होप यू कैन सी दिस इज अपेंड मोड। W मोड में तो इरेज कर देता है, अपेंड मोड में डेटा को प्रिजर्व करता है। ठीक है, सो it will be erased and we start with an empty file. In this example below we open our existing file. अब हम अपनी पुरानी जो existing file है उसको new file को open करेंगे। कैसे? Let's see an example. PHP f open new file dot txt comma w। अगर w की जगह a लिखेंगे तो फिर पुराना डेटा इरेज नहीं होगा, उसके बाद ही राइटिंग शुरू होगी। वो डेटा एज इट इज रहेगा और उसके नीचे राइटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो f ओपन न्यू फाइल डॉट txt इन w मोड, और आपने न्यू फाइल में क्या रखा हुआ है? ऑलरेडी कुछ डेटा रखा हुआ है, बट वो w मोड की वजह से उस पुराना डेटा को, यानी ये जॉन डो और जेन डो वाला डेटा जो है उसे वो इरेज कर देगा और खाली फाइल को ओपन कर देगा माई फाइल में। ठीक है, अब आपने फिर से लिखा मिक्की माउस। txt वेरिएबल में एक स्ट्रिंग है मिक्की माउस। अब आपने एफ राइट के थ्रू माई फाइल में txt को राइट किया, फिर txt और एक बनाया आपने अनदर txt दैट इज़ मिनी माउस। इस बार आपने एफ राइट फिर से किया और एफ क्लोज। तो व्हेन वी ओपन दिस न्यू फाइल तो जोन डे और जेन डे वो सब वैनिश हो गया, गायब हो गया, एंड ओनली द डेटा अभी जो आपने लिखा वो मिक्की माउस और मिनी माउस लिखा है। एक वेरिएशन जब भी आप ये एग्जीक्यूट करते हो, वेन एवर यू डू द एग्जीक्यूशन एट योर होम, इसमें एक वेरिएशन करना, एक बार तो W मोड से करना तो ये आउटपुट आएगा, और एक बार यहाँ पे W की जगह A मोड लिखना, तो फिर कैसा आउटपुट आएगा? जॉन डो, जेन डो, मिक्की माउस, मिनी माउस, चारों स्टेटमेंट्स। अंडरस्टूड?
ठीक है। सो दिस इज ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग का मतलब वही होता है कि पुराने डेटा के ऊपर फिर से लिख दिया, दैट इज ओवर राइटिंग, हेंस दे हैव यूज्ड PHP ओवर राइटिंग दिस concept here. Okay, so this is it. There are few more things that can be seen, like what is remaining is PHP file upload, how we are going to upload the files, but we will see that later in our next video. Till then, thank you so much.